Hello guys, I welcome you all to the day 155 of our series, and in today's session we are going to learn some usages of the new modal must. So let's get started, and before we move forward, here is your yesterday's task. So let's have a look at it first. Here you were supposed to correct the sentence by choosing the right option. Now first one is, a likely story is one that you think is probably false. Next is, if you reply, don't ask me, it means you don't know the answer or you don't want to answer. That means you don't know the answer. If you say you are kidding, you think the person is being or not being serious. Probably we will think that that person is not being serious with us. Next is, no way means it is not practical or it is not possible. It is not possible. Next is, I haven't the faintest idea means I don't know. This is our next exercise. I have just won the lottery, and your response will be, you are kidding. You are kidding, or you are joking, or you can't be serious. You can't be serious. Next is, could I borrow your dad's car? And in this case, your response would be no way or no chance. Next is, why did they leave so early? And you have no idea. So, no idea, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Next is, has it been busy in the office today? Yes, it has been one of those days. One of the toughest days. Or you can also reply it like this. Yes, it has been a long day. A long day. मीन्स आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, आपको बहुत ज़्यादा थकान हो गई हो, तो घर पे आके आप ये बोल सकते हो, it's been a long day. मीन्स बहुत ज़्यादा थकान हो गई आपको. Next is, are you going to the wedding? Yes, you bet. Yes, you bet. Next is, do you think they will win? Definitely, it is a foregone conclusion. It is a foregone conclusion. Next is, I won some money. Did you? No such luck. No such luck. Next is, shall we enter for the competition? Why not? We have got nothing to lose. Means there is only one option for us, and that is to win. Next is, it is hot in here, isn't it? The answer is, yes, you can. Say that again. You can say that again. That means, yes, I completely agree with you. Last one is, my car broke down this morning and a tooth fell out this afternoon. It's not your day. It's not your day. Now let's move forward. And this is your another task. You are supposed to write a story using might. So let's get started. Chris and Jen are at home relaxing on the front porch. Have you seen the cat? Asks Jen looking around. Jen पूछती है आसपास देखते हुए कि क्या तुमने cat को देखा है? No, I don't know where he is. Replies Chris. Chris का इस पे reply होता है, he might be eating his food. हो सकता है वो अपना खाना खा रहा हो. नेक्स्ट इस पे जेन का रिप्लाई होता है, नो आई चेक्ड इन द किचन, कि मैंने किचन में भी देख लिया. आई गेस ही माइट बी इन द लिविंग रूम प्लेइंग. मुझे लगता है कि वो लिविंग रूम में होगा, खेल रहा होगा. ही माइट बी मीन्स फ्यूचर में यूज किया गया है इसे, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी काफी लो है.
क्योंकि अगर हाई प्रोबेबिलिटी होती तो हम विल ही कह देते, अगर हमें श्योरिटी होती तो हम यहाँ पे विल को यूज कर देते। नेक्स्ट है क्रिस जम्प्स अप फ्रॉम हिज चेयर, ओह नो, she shouts, then he might be scratching the furniture, he might ruin the couch। अगर वो वहां पे भी नहीं है तो वो डेफिनेटली फिर वो शायद यहाँ फर्नीचर को स्क्रैच कर रहा होगा, वो काउच को खराब कर देगा पूरे को। वेल आई डोंट हियर हिम स्क्रैचिंग एनीथिंग, कि मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, किसी स्क्रैच की आवाज नहीं आ रही है। ही माइट नॉट, यहाँ पे नेगेटिव वर्जन इसका यूज किया गया है। ही माइट नॉट फील लाइक स्टेइंग इन द हाउस नाउ, ही माइट बी हैविंग एन एडवेंचर आउट इन द यार्ड एक्सप्लोरिंग, यानी कि यार्ड में, बाहर आंगन में वो खेल रहा होगा, कोई एडवेंचर कर रहा होगा। माइट बी हैविंग एन एडवेंचर। नेक्स्ट है और लुक सेज क्रिस, आई हैव फाउंड हिम कर्ल्ड अप ऑन आवर न्यू पिलो, he might be having an adventure all right but only his dreams, only in his dreams, कि हाँ बिल्कुल वो कोई ना कोई एडवेंचर कर रहा होगा लेकिन सिर्फ सपनों में ही। तो आते हैं हमारे स्टार्टिंग में, आज की स्टार्टिंग करते हैं इसकी मस्ट से। देयर इज नो एस in the third person singular number, or you can also write it like with singular subject, because we always use singular verb with singular subject and we know that only singular verb takes s at the end of it. He must start coming on time. अगर हम यहाँ से must को हटा देते हैं फिर तो आपको starts करना पड़ेगा। He starts क्योंकि singular verb है, लेकिन must में आप s को नहीं यूज कर सकते क्योंकि मॉडल्स में एस को हम नहीं यूज करते। नेक्स्ट है क्वेश्चंस और नेगेटिव का केस। मस्ट यू गो, देखिए हम डू डज पास्ट की बात करें तो डिड को और किसी भी मॉडल को यूजुअली एक साथ नहीं यूज करते, दोनों में से एक को हमें रिमूव करना होता है। अब आप जैसे यहाँ पे देखिए मस्ट यू गो, डू यू मस्ट गो, अब आपने यहाँ पे डू भी यूज कर दिया, मस्ट भी यूज कर दिया, एक को आपको रिमूव करना होगा। इसी तरह से नेगेटिव है, नेगेटिव में भी डोंट अगर आप यूज कर रहे हो फिर मस्ट की रिक्वायरमेंट मस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती, क्योंकि देखिए नॉट इज ऑलवेज एडेड आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में ही हम नोट को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स के केस में हमेशा ये मॉडल ही होती है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो इसी में हम नॉट को ऐड करते हैं, मस्ट नॉट। नेक्स्ट इज आफ्टर मस्ट, यानी कि मस्ट के बाद में भी हम इन्फिनिटिव को या फिर जेरेंड स्ट्रक्चर को नहीं यूज करेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर any kind of model. So base form means we are not supposed to write ing structure and to after model. So I must to write to my mother, incorrect हो जाएगा। I must writing to my mother, वो भी incorrect हो जाएगा। must के बाद में आप writing भी नहीं यूज कर सकते। अब इनकी देखिए प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव यानी कि ing, कंटिन्यूअस फॉर्म। देखिए आप डायरेक्ट मस्ट के बाद में ing नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी शो करनी है तो इनके बीच में आपको एक बफर की तरह से बी को ऐड करना पड़ेगा। मस्ट बी और उसके बाद में ing आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मस्ट मॉडल है, मॉडल की कंडीशन थी, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वो हमने बी लगा के कंप्लीट कर दी हमारी, इस वजह से अब इसके बाद में ing आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखिए यू मस्ट बी जॉकिंग, यहाँ पे ing स्ट्रक्चर ही गिवन है इसका। इसी तरह से हम परफेक्ट का केस भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट यानी कि एच वर्ड हम यूज कर सकते हैं, और एच वर्ड हमें पता है कि सभी मॉडल्स के केस में सिर्फ और सिर्फ हैव को यूज किया जा सकता है, हैज और हैड। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गई। तो अब देखिए इट मस्ट हैव और उसके बाद में V3 यानी कि बिन, इट मस्ट हैव बिन टेरिबल टू लिव ड्यूरिंग द वॉर। और इसी तरह से पैसिव का केस, अब हमें पता है पैसिव में B प्लस V3 ये हम यूज करते हैं। अब मॉडल्स का केस है तो इसके आगे मॉडल्स भी आ जाएंगे, मॉडल्स प्लस B प्लस V3, तो वही है, ये देखिए मस्ट
and after that be, and after that V3 means kept. Dog must be kept on a lead. Next में आते हैं, must has no infinitive और participles. अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि must के बाद में हम to को रिमूव करेंगे और must के बाद में ही अगर ing स्ट्रक्चर है तो ing हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन must में अपने आप में भी हम नहीं यूज कर सकते. आप to must नहीं यूज कर सकते, आप musting नहीं यूज कर सकते. इसकी अगर आपको पास्ट फॉर्म चाहिए है must की, उस केस में आप यहाँ पे musted भी नहीं कर सकते पास्ट फॉर्म के केस में. अच्छा अब देखिए, हम अब तक ये पढ़ते आए हैं कि हमारे पास can की पास्ट फॉर्म प्रेजेंट थी, that was good. हमारे पास may की भी पास्ट फॉर्म थी and that was might. इसको हमने यूज किया. लेकिन अब must के केस में must की पास्ट फॉर्म नहीं है और musted ये हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि ये कुछ होती नहीं है. तो इस केस में must की पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं must have V3, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था could have V3, might have V3. तो इसी तरह से must have V3, इससे हम पास्ट फॉर्म इसकी बना सकते हैं. यहाँ पे देखिए, I can't find my keys, मैं अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पा रही हूँ. I must have left them at home, शायद मैंने उसे घर पे ही छोड़ दिया होगा. तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था. नेक्स्ट में आते हैं concluding that something is certain. Certain means something is extremely sure. Certainty, surety आपको दिखानी है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो must को. फर्स्ट हेडिंग है हमारी स्टेटमेंट्स. सो वी यूज मस्ट टू एक्सप्रेस द कंक्लूजन ऑफ समथिंग, to give out the idea that something is definitely true, that something is inarguably true, कि वहां पे तो कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता, वो एकदम करेक्ट है. अब जैसे इस स्टेटमेंट में देखिए, इफ A is bigger than B and B is bigger than C, in that case automatically A must be bigger than C. तभी तो ये स्टेटमेंट जाके हमारी करेक्ट होगी, यानी कि यहाँ पे तो 100% श्योरिटी है, ये तो इनकरेक्ट नहीं हो सकता. डेफिनेटली ट्रू जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके केस में हम मस्ट को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज मैरी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम, शी कीप्स क्राइंग. यहाँ पे अब हमारा आर्ग्यूमेंट है, मीन्स कि इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट हमने रखा है, इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मीन्स पॉइंट, हमने इतना अच्छा पॉइंट रखा है रीजनिंग के साथ में कि उसको मीन्स वो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा. तो यहाँ देखिए, मैरी मस्ट हैव अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज देयर इज द डोरबेल, कि डोरबेल रिंग हो रही है, इट मस्ट बी रॉजर. अगेन आप इस तरह की रीजनिंग के साथ में अपना पॉइंट रख रहे हो कि वो डेफिनेटली ट्रू ही लगे. नेक्स्ट में आते हैं, इन केस ऑफ क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स. Must is not often used to express certainty in questions and negative clauses. And why is that? Because must means 100% surety. Must means 100% surety. And in case of negative, let's take the case of negative first. So in case of negative sentences, we are denying that surety. So that's why the usage of must is not appropriate in case of negative statements. अब एग्जाम्पल पे आते हैं. It can't be the postman at the door, कि डोर पे पोस्टमैन नहीं आ सकता, तो इस वजह से यहाँ पे can't be हमने यूज किया है, ना कि must not. Similarly, in case of questions also, now let's come to the question part, means interrogative statements. In case of questions, again, we are not 100% sure, and that's why we are asking a question at the first place. Means अगर हम श्योर नहीं है 100%, तभी तो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर श्योरिटी होती तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ता. So again, the usage of must in questions is highly irrelevant here. For example, there is somebody at the door. Who can it be? अब यहाँ पे पहले ही हम गैस कर रहे हैं यहाँ, और इस वजह से हमने यहाँ पे कैन को यूज किया, क्योंकि श्योरिटी के लिए ही हम मस्ट को यूज करते हैं और श्योरिटी हमारे पास है ही नहीं क्वेश्चन में, इस वजह से हम कैन को यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में. नेक्स्ट में आते हैं, however must not and mustn't is occasionally used in this sense, especially in American English.
Well, we know that American English is not that standard as the British one. That's why Americans generally use must in negative case. Means Americans तो negative में भी use कर देते हैं क्योंकि वो इतनी standard English को use नहीं करते. I haven't heard Molly moving about. She must not be awake yet. Her alarm must not have gone off. Means she can't be awake yet कि वो अभी तो उठी हुई नहीं हो सकती. Her alarm can't have gone off. उसके अलार्म भी नहीं बजी होगी अभी तक तो. Means can't have gone off. Gone off means उसने बंद नहीं की होगी अभी तक तो. Next is and must not is normal in this sense. अब देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक है क्वेश्चन टैग. ये completely different टॉपिक है. क्वेश्चन टैग के केस में must not यूज किया जा सकता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी, but question tag is a completely separate topic and I'm going to explain the question tags most probably after the completion of models. तो अभी के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. It must be nice to be a cat, mustn't it? तो क्वेश्चन टैग का खैर एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ सेंटेंस में यूज होती है मस्ट, उसी को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं. इस वजह से यहाँ पे मस्ट को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट में आते हैं द केस ऑफ नीड नॉट. नीड नॉट. अब देखिए नीड नॉट को ब्रिटिश इंग्लिश में इजीली यूज किया जा सकता है. मीन्स नीड नॉट, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है. समथिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू डू. और यहाँ पे आप नीड नॉट के बजाय डज नॉट हैव टू भी यूज कर सकते हो क्योंकि नीड नॉट का दूसरा मीनिंग यही होता है दैट यू डज नॉट हैव टू डू दिस, देयर इज नो नीड फॉर यू टू डू दैट थिंग. तो अब यहाँ देखिए लुक एट दोज ट्रैक्स और ट्रेसेस दैट मस्ट बी अ डॉग. ये जरूर किसी ना किसी डॉग के होंगे. इट नीड नॉट बी. फिर आप बोलते हो कि जरूरी नहीं है कि डॉग के ही हो. इट कुड बी अ फॉक्स. किसी फॉक्स के भी हो सकते हैं ये. या फिर इसको इस तरह से भी कहा जा सकता था दैट इट डजंट हैव टू बी. नेक्स्ट में आते हैं कंक्लूजन्स अबाउट द पास्ट. अब जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि पास्ट में अगर हमें शो करना है तो वहां पे मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म तो होती नहीं है. तो इस वजह से ऐसे केस में हम सिर्फ परफेक्ट के केस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स मस्ट हैव V3, यही हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है पास्ट को शो करने का. जैसे यहाँ देखिए वी वेंट टू रोम लास्ट मंथ. हम लास्ट मंथ रोम गए थे. दैट मस्ट हैव बीन नाइस, कि वो काफी अच्छा ही रहा होगा. अब यहाँ पे एक पर्सन ये बोल रहा है कि हम लास्ट मंथ रोम गए थे और फिर सामने वाला पर्सन कह रहा है दैट मस्ट हैव बीन नाइस, कि वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका. अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है. नेक्स्ट इज अ वुमन फोन्ड और कॉल्ड. अ वुमन फोन्ड व्हाइल यू वर आउट. जब तुम बाहर थे तब किसी वुमन की कॉल आई थी. इस पे आपका रिएक्शन होता है इट मस्ट हैव बीन केट. अब यहाँ पे देखिए मस्ट हैव बीन आप पास्ट को यूज कर रहे हो, शायद केट ही होगी उस टाइम पे. इसी तरह से आप कैन को यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में, नेगेटिव में, कहीं पे भी. वेयर कैन जॉन हैव पुट द मशीन मैचेस, और ही कांट हैव थ्रोन देम अवे, कि नहीं उसने गिराए तो नहीं होंगे. ही कांट हैव थ्रोन देम अवे. नेक्स्ट में आते हैं एंड दैट इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. अब इनडायरेक्ट के स्पीच के केस में ये होता है इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स इन द पास्ट टेंस, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सेंटेंस मस्ट बी पुट फॉरवर्ड इनटू पास्ट टेंस ओनली. अब यहाँ पे आप फ्यूचर को यूज नहीं कर सकते. अब देखिए यहाँ आई फेल्ट, दिस इज द वर्ब ऑफ अ पास्ट टेंस. आई फेल्ट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. अब हमने प्रीवियस सेशंस में ये किया है आई फेल्ट देयर. इसी तरह से अगर यहाँ पे मे होती तो हम यहाँ माइट कर देते क्योंकि उसकी पास्ट फॉर्म हमें यहाँ यूज करनी थी. इसी तरह से यहाँ कैन होता तो हम कुड कर देते क्योंकि यही हमने पढ़ा है, क्योंकि पास्ट फॉर्म हमें यूज करनी थी. लेकिन मस्ट के केस में मस्ट की कोई पास्ट फॉर्म है ही नहीं, तो इस वजह से इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम मस्ट को ही यूज करेंगे, चाहे फिर वो सेंटेंस पास्ट में ही क्यों ना स्टार्ट हुआ हो. आई फेल्ट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. अभी करेक्ट है अपने आप में स्टेटमेंट. Everybody told again is the past form of the verb. So everybody told me I must stop worrying. यानी कि
पास्ट फॉर्म इसकी नहीं एग्जिस्ट करती, उसका आपके पास ये एडवांटेज है कि आप पास्ट में भी मस्ट ही यूज कर सकते हो। और एक और तरीका ये है जो हम अभी करके आए हैं, मस्ट हैव V3 मीन्स परफेक्ट केस ऑफ मस्ट। नेक्स्ट इज मस्ट एंड शुड। अब इन दोनों में कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं। देखिए, शुड is the weaker form of must. must में श्योरिटी 100% होती है और should में इतनी श्योरिटी नहीं होती, इसमें बहुत कम होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, Anne must be at home by now, कि अब तक तो एन घर पे आ गई होगी या फिर अब तक तो घर पे होगी ही। मस्ट बी यहाँ पे श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, दैट शी इज सर्टेनली एट होम, कि वो डेफिनेटली होम होगी यानी घर पे होगी। आई मीन एंड शुड बी एट होम बाय नाउ, और जैसे ही हम यहाँ पे मस्ट बी के बजाय शुड बी यूज करते हैं, दैट मीन्स अब आप एक प्रोबेबिलिटी, अब आप एक गैस लगा रहे हो, अब श्योरिटी नहीं रहेगी। अब आप ये कह रहे हो कि शायद वो घर पे होगी इस टाइम पे, तो यहाँ पे शुड लगाते ही एक वो शायद वाला फैक्टर आ जाता है। आते हैं लास्ट पार्ट में, एंड दैट इज वोकैबुलरी पार्ट। तो यहाँ पे आज फिर से वही इडियम्स और कुछ सेट फ्रेजेस हैं, उनको हम देखेंगे। तो अब देखिए, अ लास्ट रिजॉर्ट और अ फाइनल रिजॉर्ट, अभी आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। तो देखिए, रिजॉर्ट का मीनिंग यहाँ पे है रूट, रूट या रास्ता। मीन्स बोलते हैं ना, अब तो तुम्हारे पास यही आखिरी रास्ता है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो वही है ये रिजॉर्ट, यानी कि फाइनल जो है, फाइनल डेस्टिनेशन अब आपकी यही है, अब आपको इसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो वही है एन एक्शन दैट यू विल टेक इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन, कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो वही है ये अ लास्ट रिजॉर्ट या अ फाइनल रिजॉर्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ ऑल एल्स फेल्स, कि बाकी सारी चीजें जब फेल कर जाएं, इसके सिनोनिम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट इज मोर ट्रबल देन इट इज वर्थ। अब देखिए, कोई भी चीज है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेजेस, प्रोज मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स। और अगर कोई चीज आप लो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत कम हो लेकिन उनके नेगेटिव पॉइंट काफी ज्यादा हो, तो उस केस में आप यही कहोगे कि जो मैंने इस पे रुपए लगाए हैं उन रुपए के लायक नहीं थी ये चीज, मीन्स वर्थ नहीं थी उस मनी के ये चीज। तो वही है ये, इट इज मोर ट्रबल देन इट्स वर्थ, यानी कि ये जितने इस पे रुपए लगे हैं उससे ज्यादा तो हमें परेशानी उठानी पड़ रही है इस चीज को लेके, इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं बजाय के एडवांटेजेस के, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब यहाँ ये हम तब यूज करते हैं इस फ्रेज को ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपके पास सिर्फ एडवांटेजेस हो, वहां पे आपके पास कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो कि इसके सिर्फ प्रोज हैं, इसके कोई कॉन्स नहीं है। मीन्स दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट इज लूज फेस, टू लुक स्टूपिड, यानी कि टू बी लेस रिस्पेक्टेड। कुछ आपने गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से अब आप ऐसे हो कि अभी सभी आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि आप एक स्टूपिड हो, मीन्स आपकी रिस्पेक्ट उन सबकी नजरों में नहीं रही है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे लूज फेस। नेक्स्ट इज कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। इसका मीनिंग है कि जमीन से ही जुड़े रहना, मीन्स रिमेन सेंसिबल एंड रियलिस्टिक अबाउट लाइफ। देखिए कई बार हम ये बोलते हैं ना कि उसको सक्सेस मिलने के बाद वो हवा में उड़ने लग गया है, यानी वो काफी घमंडी हो गया है। उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज ही इज इन एयर्स। इन एयर्स, और यहाँ पे एयर हवा नहीं है, एयर का मीनिंग है घमंडी। प्राउड इन अ नेगेटिव वे, कंसीटेड, सुपरसीलियस, यानी कि ही इज इन एयर्स नाउअडेज, कि वो तो हवा में ज्यादा उड़ने लग गया है, वो घमंडी ज्यादा हो गया। इसी का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है सक्सेस के बाद में भी, इफ यू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स आप अभी भी सेंसिबल हो चीजों को लेके, अभी भी आप में ईगो इश्यूज नहीं आए हैं, तो उसके लिए हम ये फ्रेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लेट योर हेयर डाउन, यानी कि बस आराम करो, अभी आप रिलैक्स करो और इंजॉय योर सेल्फ। लेट योर हेयर डाउन। नेक्स्ट इज
फाइट अ लूजिंग बैटल। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो, जिसमें आप एफर्ट्स लगा रहे हो, वो डेफिनेटली फेल होगी ही होगी, और फिर भी आप उसमें एफर्ट्स लगाते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रिलेशनशिप है, आपको पता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप अपना वहाँ पे 100% देते ही रहते हो, आप अपने एफर्ट्स पूरे लगाते हो। इन दैट केस यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। आपको पता है हारना है आपको, लेकिन फिर भी आप अपना एंड टाइम तक आप अपने ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट इज टू गुड टू बी ट्रू। कोई भी जैसे सिचुएशन है, अगर वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन अगर हो जाए, तो आपको लगता है कि ऐसा तो रियलिटी में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो सच हो ही नहीं सकता, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है टू गुड टू बी ट्रू, यूज टू एक्सप्रेस डाउट्स अबाउट अ सरप्राइजिंगली गुड सिचुएशन। एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपके घर वालों तक ये बात पहुंच गई, और फिर आप जब घर पे आते हो शाम को, तब आप देखते हो कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, सभी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, सभी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उस केस में आपको ये लगेगा ना कि जरूर कुछ दाल में काला है, ये जो सिचुएशन है इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो अभी कांड किया है उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो आपको मार पड़नी चाहिए थी, या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ मीन्स आपको डांट तो एटलीस्ट पड़नी चाहिए थी। लेकिन आप जाते हो और उस सिचुएशन में आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो, दैट इट इज टू गुड टू बी ट्रू, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये सरप्राइजिंगली गुड है। नेक्स्ट इज लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन, या फिर टू बी इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन। अब यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आप चीजों से अवेयर नहीं हो, जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं उनसे आप इतने अच्छे से परिचित नहीं हो, अवेयर नहीं हो, और आप अपना टाइम डे ड्रीमिंग में ही निकाल रहे हो। डे ड्रीमिंग यानी कि यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन इमेजिनिंग थिंग्स। तुम सिर्फ सोचने में ही, इमेजिन करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन। तुम अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। अब आते हैं इसके यूसेज पे। वी कैन बोरो मनी इफ़ यू नीड बट इट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि हम मनी को उधार ले सकते हैं लेकिन ये आखिरी रास्ता होगा। इट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट, कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें ये उधार लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज आई हैव गॉट अ न्यू कंप्यूटर एंड फ्रेंकली इट इज़ मोर ट्रबल दैन इट्स वर्थ, कि अभी जो नया कंप्यूटर लिया है इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं बजाय के फ़ायदे के। सो इट इज़ नॉट वर्थ इट, मीन्स जो इस पे रुपए लगे हैं वो इसके लायक नहीं था। नेक्स्ट इज़ ही हैज़ गॉट हिज ओन फ्लैट, कि उसने अपना नया फ्लैट ले लिया है बट हिज मम स्टिल कुक्स फॉर हिम, लेकिन अभी भी उसकी माँ ही उसके लिए खाना बना रही है। ही हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि उसको तो दोनों तरफ से ही फ़ायदा हो रहा है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट इज शी वुडंट एडमिट हर मिस्टेक बिकॉज शी डिडंट वांट टू लूज फेस, यानी कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट तो नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी जो रिस्पेक्ट है लोगों की नज़रों में वो कम हो, कि वो स्टूपिड दिखे, वो ऐसा नहीं चाहती। नेक्स्ट इज आई थिंक माई नेफ्यू विल डू वेल एज लॉन्ग एज ही कीप्स हिज फीट ऑन द ग्राउंड, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा नेफ्यू है वो तब तक अच्छा कर पाएगा जब तक वो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो सेंसिबल रहेगा। नेक्स्ट इज शी हैज़ ऑलवेज, शी इज़ हैज़ नहीं है ये, शी इज़ ऑलवेज टेरिबली सीरियस, कि वो हमेशा ही बहुत सीरियस रहती है। आई थिंक शी नीड्स टू लेट हर हेयर डाउन अ बिट, मीन्स आई थिंक शी नीड्स टू रिलैक्स अ बिट। नेक्स्ट में आते हैं, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट बट आई थिंक शी इज़ फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, कि ऑल्दो कि वो अपने एफ़र्ट्स जो हैं वो 100% दे रही है किसी भी सिचुएशन में, लेकिन फिर भी वो एक लूजिंग बैटल से फाइट कर रही है, यानी कि उसको पता है कि वो हार चुकी है वहाँ पे, उसको पता है कि उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं आना उस सिचुएशन का, बट स्टिल शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। नेक्स्ट इज़ यू कैन ईट व्हाट यू लाइक एंड ड्रिंक्स आर फ्री, जो तुम्हारा मन हो तुम वो खा सकते हो और ऊपर से फ्री में तुम्हें ड्रिंक्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे इतना सुन के आपके माइंड में डाउट आता है दैट इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू,
डजंट इट, ये तो बहुत ही अच्छा, मीन्स इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे भी सरप्राइजिंगली अच्छी सिचुएशन है, तो ये सच कैसे हो सकती है, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी. नेक्स्ट इज द ट्रबल विद रॉल्फ इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. यानी इस पर्सन के साथ में यही मुश्किल है, यही इसकी नेगेटिव बात है, इसके साथ ट्रबल है कि वो अपनी ही दुनिया में रहता है. ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. तो ये आज का सेशन था और आपको इन्हें कंप्लीट करना है, ये आपका टास्क रहेगा. ये नेक्स्ट है आपका टास्क. और इसके अलावा यू हैव टू फ्रेम अ स्टोरी अराउंड मस्ट. So guys, thanks for listening and just keep practicing.